Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about some important points. As you all know that nowadays what is happening, you have a lot of confusions because your dates of IMUCT and your dates of board exam are going to clash. So yes, you should make a strategy, like according to that, but it's very difficult because 11th class is also included in IMUCT exam. So how to prepare and everything. It's difficult to prepare, believe me, like especially when the luck factor comes here. So it's very difficult because now you have to prepare 11th and 12th also, you have to prepare for the board also, and then sponsorship also. So because I'm going to talk about like companies, like how to think about that. The second is the preparation because of the clash, and I'm going to give you some idea what I think about this this situation. But this is not a full video in which I'm going to share the strategy. I've already made a lot of videos on the syllabus of different subjects. I've already made a 40 days like a strategy video. So yes, kindly refer to these videos, or like when we complete 10K, then we will make a video in which I will tell you which formulas are important, which chapters are important, which equations and everything are important, according to me. Because right now, as you all know that I'm the only mentor who has the experience of online and offline exam. So yes, it's going to be a useful thing for you, but it will take time because I have to I have to find first of all the 11th and 12th books, and then I have to find what content I have studied in my time and what are important things. Okay, so it will take time, but yes, it will come soon. But we are going to hit 10K subscribers. So please subscribe my channel, share it with your family members, share it in different groups. So yes, this is it, and I hope you will like this video. So kindly watch this video till the end. Now I'm going to start this video, but before this thing, understand this, that your 12th board exams are more important than IMUCT, more important than any exam, because there are a lot of like advantage you will get from this score, your PCM score, your English score. So please don't think like that I'm not prepared and I have to prepare for IMUCT also, and then I will compromise with the board exams. No, if you haven't prepared for board exam, then fully go for board exam. Doesn't matter like your IMUCT is like going to get affected. No, that's the thing. You have to just prepare for board exam. Your priority should be for the board exam. Right now you have to understand that जब मैं मैनेजमेंट कंपनीज की बात करता हूँ, तो मैनेजमेंट कंपनीज मोस्टली क्या करती हैं कि उनके पास सीट्स बहुत होती हैं. दे आर लाइक 100+ सीट्स, 40-50+ सीट्स, एंड दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट. अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू गॉट अ स्पॉन्सरशिप, देन IMUCT रैंक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, इट्स इंपॉर्टेंट, बट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आप पूरी जी जान ही लगा दो. बिकॉज यहाँ पे अगर आप 3000 रैंक लाते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड रैंक. कभी कभी 4000 और 5000 पे भी जाती है. दैट इज अ सिनेरियो, बट 3000 इज अ वेरी गुड रैंक फॉर दैट. बट यही अगर मैं कंपेयर करता हूँ ओनरशिप कंपनी के साथ, नाउ ओनरशिप में क्या होता है, सीट्स वेरी लिमिटेड होती है यहाँ पर. अब क्यों लिमिटेड होती है? क्योंकि वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आती है, और वो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको देंगी 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट या 5 सीट ऐसे. ठीक है, बहुत कम नंबर होता है. और इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन इज वेरी लाइक हाई. और इसमें क्या होगा कि आपको रैंक कभी तो ना आपको मेल में बता देंगे दैट यू हैव टू कम, यू हैव टू गेट अंडर दिस रैंक, लाइक 2500 2000 ऐसी रैंक के अंदर लाओगे तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी. कभी वो डायरेक्ट मेल में आपको बता भी देते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 2500 इज अ वेरी लाइक इसके नीचे लाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. बट यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको रैंक लानी पड़ती है. ठीक है, और साथ में कम सीट्स हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है. अगर आप कर रहे हो ओनरशिप के लिए ट्राई, सपोज करो आपको कहीं TMI से आप कर रहे हो एंड आपको स्पॉन्सरशिप मिली है, किससे, विलियमसन से, टॉम से, आपको MSC से, तो यहाँ पे ना आपको रैंक अच्छी से अच्छी लानी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम पे क्या होता है ना, रिजेक्ट हो जाते हो आप. ठीक है, आप IMUCT की वजह से रिजेक्ट हो सकते हो, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो सकते हो, आप मेडिकल की वजह से रिजेक्ट हो सकते हो. ये प्रॉब्लम फैब में आई थी. ठीक है, मतलब ये वाले नहीं, ये 2021 अगस्त में भी आई थी वाली प्रॉब्लम कि मेडिकल की वजह से एकदम
आपका रिजेक्शन हो जाता था। तो वो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी रैंक पे भी, ठीक है। विद दैट आपके पास SCI बचती है, लास्ट में आप फॉर्म भर के IMUCT रैंक के हिसाब से SCI में स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। बट हाँ, मोस्टली ओनरशिप में ये प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी, कम से कम रैंक आपको लानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इस दोनों का, ठीक है, मैनेजमेंट हो या ओनरशिप, इसमें आपको एक चीज जो समझनी है कि ये पूरी तरीके से सीट फिलअप पे डिपेंड करता है। सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, कोई भी हो सकती है, तो उसमें ओनली 30 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, और आपकी रैंक आती है मान के चलो 2500, ठीक है। लेकिन आपकी रैंक अगर 2500 है, उससे 2000 तक में, 1 से 2000 तक में उस कंपनी के लिए किसी ने अप्लाई किया है और वो 2000 के अंदर ऑलरेडी 30 बच्चे आ जाते हैं, तो आपकी रैंक चाहे 2500 है या 2100 है, तभी भी आपकी रैंक की कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी 30 वो मिल चुके हैं अपने कैंडिडेट्स, ठीक है, वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, आप वो कैडेट्स उनको मिल चुके हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ वेरी गुड रैंक। ओके, सो ये चीज़ आपको आशा करता हूँ समझ आ गई हो। We have talked about why IMUCT rank is important. Now we will talk about the preparation, and it is very important. Why? आप देखो, जो तुम्हारे एग्जाम की डेट्स हैं, जितना मैंने पूछा है वो है कि अप्रैल के लास्ट से मई के लास्ट तक है, ठीक है। एंड अगर आपने सर्कुलर पढ़ा होगा IMU का, तो IMU में लिखा हुआ था 29 मई के राउंड आपका एग्जाम है, ठीक है। वो टेंटेटिव डेट है, ऊपर नीचे हो जाएगी, अगर आप मेल भेजोगे तो वो तो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या रियली में अगर आपकी यहाँ पर सपोज करो आपने यहाँ पर 12th की प्रिपरेशन अच्छे से की है, ठीक है, और अब आप सोच रहे हो कि मुझे IMUCT के लिए भी करना है, तो मुझे 11th की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, और आपका बोर्ड एग्जाम भी है और आपके IMUCT का एग्जाम भी है, स्पॉन्सरशिप सब है, तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि अपना फोकस आप बोर्ड एग्जाम से हटा के उस पर भी कर रहे हो? क्योंकि इससे क्या होगा, देखो, बोर्ड एग्जाम इज मच मोर इंपॉर्टेंट यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जो लगता है, ठीक है, कि आपको ना फोकस पहले बोर्ड एग्जाम पे करना चाहिए, ठीक है, और 12th का जो सिलेबस होता है वो भी काफी होता है, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 200 क्वेश्चंस, ओके, तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स में ओनली आपको दिखेगा पार्ट किसका, 11th का, और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गई, तो ये मोस्टली आपको बेसिक मिलती है, तो ये तो आपका पहले से प्रिपेयर है। बट जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें जो अगर आप पार्ट छोड़ भी देते हो, सपोज करो उसमें आपके आते हैं, दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चन 11th के आ रहे हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन छोड़ भी दे रहे हो, तो 160 आपके पास करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एंड 120 से प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। सो फिर भी आपके पास 40 का एक लीवे हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब तुम 150 तक भी ला सकते हो, 160 तक भी स्कोर कर सकते हो, क्या पता 40 में से भी तुम कुछ और ज्यादा स्कोर कर सको, तो तुम्हारे पास काफी बच जाता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा पहले तुम एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए जाओ। और वैसे ये भी चीजें मैंने बहुत पहले बता दी थी तुम्हें कि पहले से प्रिपेयर रहो, ये सारा, तो जो भी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में है, वो बताते हैं भैया कि मेरे 11th का ये हो गया, वो भी अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उनकी, ठीक है, उनका भी बोर्ड एग्जाम है। सो उनको जरूर फायदा होगा, बिकॉज दे वर फॉलोइंग द सजेशंस एंड दे आर स्टिल फॉलोइंग द सजेशंस, यू नो। एंड सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अगर कोई मेरी लाइव देखता है इंस्टाग्राम में या लाइक फॉलो करता है मुझे ट्विटर पे या यू नो लाइक, तो आई ऑलवेज टेल देम, यू नो लाइक, कंपटीशन तुम्हारा आगे बढ़ने वाला है, तो तुम जितना फोकस कर सकते हो एक पर्टिकुलर बैच के लिए, मतलब जो तुम्हारा अपकमिंग बैच है, तो वो उतना बढ़िया रहेगा। बिकॉज क्या होगा ना, जैसे तुम एक बैच के लिए अभी ट्राई कर रहे हो, ये ठीक है, अगर हुआ या नहीं हुआ वो चलता है, बट आगे जब तुम जाओगे तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जो तुम्हारा अपकमिंग बैच आता है उसी में तुम पूरी जी जान लगा दो। बट विद दैट, यू नो लाइक, देखो, अगर तुमने कभी मेरी बात अच्छे से सुनी होगी, तो मैंने उसमें काफ़ी टाइम बताया हुआ है कि जो 11th का होता है, 11th का तुम पहले से प्रिपेयर करके चलो, जब ये टाइम होता है, जब तुम आराम से मतलब मान के चलो दिसंबर से पहले का टाइम होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है उसमें 11th का पढ़ो, 12th का पढ़ो, 12th को तो कंटिन्यूस में रखना ही है, ठीक है, और लास्ट में 11th का छोड़ दो, ओनली 12th का पढ़ो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने पहले से काफी शेयर की हुई है। इससे क्या हो जाता है कि तुम्हारा 11th का भी कवर हो गया, 12th का कवर हो गया, 12th का क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 12th का कवर करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि लास्ट में अब कुछ दिन बचते हैं, ठीक है, IMUCT के एग्जाम से पहले कुछ दिन तो मिलेंगे ही तुम्हें, तो उस टाइम पे तुम 11th का हल्का सा रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन बोल रहा हूँ, और 12th तो तुम्हारी उस टाइम पे स्ट्रांग रहेगी, तो तुम बहुत अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो यही है, तुम अभी मेनली फोकस करो अपने बोर्ड एग्जाम पे, इसकी चिंता मत करो, करना है तो देखो, प्रिपरेशन तो तुमने की होगी, वैसे नहीं की है तो प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हें। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इक्वेशंस एंड चैप्टर्स, कहाँ से तुम्हें पढ़ना चाहिए,
और मैथमेटिक्स में कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मे बी आई विल मेक दैट वीडियो इफ आई विल गेट टाइम, बिकॉज नाउ डेज आई एम ऑल्सो बिजी। सो यस, जल्दी आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट मेनली जो मेरे यहाँ पर आपको चीज़ जो सजेशन रहेंगे, ओनली फोकस फॉर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस करो, और साथ ही साथ बहुत क्लियर रहो अपने माइंड से, ठीक है। और जो भी स्पॉन्सरशिप है वो अभी तुम्हारी कुछ आ चुकी है, ठीक है, ट्विटर पे मैंने अपडेट कर दिया था, तो वो तो ठीक है। उसके साथ साथ जो आ रही हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी उनके फॉर्म अप तुम भर दो, क्योंकि अगर लेट करोगे तब तुम्हारे आगे एग्जाम्स भी हैं, बोर्ड के एग्जाम, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये एक अच्छा चांस है कि अभी तुमने अगर अभी तक नहीं भरे, ठीक है, तो अभी जल्दी से भरो, अदरवाइज आगे तुम्हें डिले हो जाएगा या प्रॉब्लम होगी। और डॉक्यूमेंट जितने भी हैं पहले ही बना दो, ठीक है, या अभी नहीं बनाए तो अभी बना दो, ठीक है, अभी भी काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास। सो यही थी वीडियो, आशा करता हूँ आपको जो मेरा सजेशन है अच्छा लगा होगा, ठीक है, और तुम बिल्कुल ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ अच्छे से फॉलो करो। और हम बहुत पास हैं 10K के, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।